Hi, Namaskar, Adab. This is Rakesh Om Prakash Mehra and you're watching Bollywood Hungama. I think Gulzar Saab had written the lyrics in Ux. Yes. Okay, and once again he's coming back to you as far as the lyrics is. Back to him. Yeah, obviously you're going back to him, and he's an absolute pleasure in terms of his words. It's very difficult to explain my experience and my relationship with Gulzar bhai. It's like कैसे समझाऊँ मैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि it's like a master and a teacher and a student. It's like a guru shishya kind of a thing. It's like a son and father where I can rebel and show my tantrums at him, and he has a right to slap me if he wants to, but not like figuratively I'm talking. So जब मैं 23 साल का था, मैं बॉम्बे आया था ना नया, तो मैं गुलजार भाई के घर गया था ऑफिस, और उनका घर में ही ऑफिस था, और मैं बैठा रहा वहाँ 1 घंटा और सेक्रेटरी को बोला कि मुझे मिलना है गुलजार भाई से। तो वो भी सोचा होगा यार इतने लोग मिलने आते हैं, बॉम्बे आते हैं, तो मैंने कहा नहीं मेरे को एक बुक देनी है उनको। तो ऐसा मैंने करके झूठ बोला कुछ, और वो मैं उन्हीं को दूंगा। तो करके 1 घंटा और वेट किया, तो उन्होंने बुला लिया कि कोई आया है, दिल्ली का लड़का है, इतनी देर बैठा है, तो 5 मिनट मिल लेना चाहिए। तो मैं गया, मैंने जाके उनको देवदास दी, मैंने बोला आप ये लिखिए, मुझे फिल्म बनानी है करके। तो देवदास तो बनी नहीं, जब मैं 23 साल का था, मुझे आती नहीं थी बनानी मुझे, और उन्होंने बातें की, मेरे को 15 मिनट और बिठाया, ये भी बोला कि वो खुद ही देवदास बनाना चाहते थे, जो बनी नहीं, लैक ऑफ फाइनेंसेस से। करेक्ट। 10-12 दिन शूटिंग भी हुई थी। 27 साल बाद मैं फिर गया उनके पास, और फिर मैंने जाके बोला कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे, और एक और जर्नी शुरू हुई। और फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, पहली कॉपी मेरे पास अभी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आई सेड थैंक यू। मैं जा रहा था तो उन्होंने बोला कि 27 साल लगे हैं तुम्हें, हाँ, हमारी स्क्रिप्ट बनने में। मैंने कहा आपको याद है? ही सेज हाँ बच्चों मैं भूलता नहीं हूँ, तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी उस टाइम और तुम पतले से थे। एंड ही रिमेंबर्ड कि 27 years back somebody had come to him with the proposition, and I had never told him about it, and nobody knew about it. Absolutely. But he remembered this boy who came to himself 27 years ago. Absolutely. Which was beautiful, I thought. You have this this entire penchant for somewhere exploring the mind space through your characters, be it Delhi 6, be it Rang De Basanti as well. The entire you love the non-linear format of storytelling. We saw that in Ux, we saw that in Rang De Basanti. Delhi 6, there was that entire metaphysical element, the climax, which maybe many of the people they did not associate with. If we talk about Delhi 6 per se. Same with Bhag Milkha Bhag as well, in terms of what you tackled. Many of those dreams of Farhan were very, very interesting, but they were at the metaphysical level. They were just exploring the entire mental space of a person. Is it something that you consciously that interests you? I don't know. I think I'm that kind of person only. Yes, I feel that शायद जहाँ मैं होता हूँ मैं वहाँ होता नहीं। हम सबकी ये सच्चाई है कि हम कभी भी हम 10 साल पुरानी बात हमें याद आ जाती है अगर रेलेवेंस हो। कभी हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं, कभी हम अपने बचपन में पे चले जाते हैं, कभी हमें किसी की याद आ जाती है। तो लाइफ लीनियर है नहीं। कभी आपको बचपन का कोई दोस्त टकर जाता है तो वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। बिल्कुल। और आप आज जो हैं वो एक्चुअली आप यू आर सम टोटल ऑफ सो मेनी ईयर्स। सो इफ आई एम 24 years today, year old, I am actually 23 years plus that day. I am not just 24. आज अगर मैं 50 साल का हूँ तो मुझे 49 years के पीछे हैं मेरे बनने में, जैसा भी good, bad, ugly वो नहीं बोल रहा मैं। So now coming back to non-linear of it, I always feel that when I am telling a story, I should have my narratives can also go back and forth. जैसे रंग दे बसंती में ये था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल
ये सब थे। 2006 में किसी और किस्म के यंगस्टर्स थे who were very materialistic, career minded, not materialistic but career minded। आज की सच्चाई अलग थी, उस टाइम की सच्चाई अलग थी बिल्कुल। बट आज भी हमें वो जज्बा चाहिए था पेट्रियाटिज्म का। तो उसमें मैंने 2 लाइनें खींची थी, एक 1920, एक 2006। बिल्कुल। फिर वो दोनों एक जब एक हो जाती हैं तो क्या होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फॉर्मेट लगा था, जो जब हम पढ़ते थे तो कोई मानता नहीं था, कोई पैसे ही देने को तैयार नहीं था जी। 1 महीने तक तो पैसे मिले नहीं थे शूटिंग से पहले हमें। क्या हम सब कुछ करने को तैयार थे बट पैसे कोई नहीं देता था। तो बट एनीवे कन्विक्शन था कि वो फिल्म बनानी है, ऐसे ही बनानी है। आई फील सिनेमा गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू बी नॉन लीनियर। जब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं तो आप समय में आगे पीछे जा सकते हैं, जो कोई नई बात नहीं है। पहले भी फ्लैशबैक्स में जाते थे जी। बट मेरा मानना ये है कि 2 टाइम पीरियड एक साथ चल सकते हैं क्या, थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं इस नरेटिव। हाँ, मैं इसको एक्सपेरिमेंट ना बोलें, इस खोज में, इस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग में सक्सेस भी मिली है, फेलियर भी मिला है, बट खुशी बहुत मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो गई है। आज का यंगस्टर, आज की ऑडियंस क्योंकि इतनी कनेक्टेड हो गई है और दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब देखने लगे हैं कि उनका अपना लेवल स्तर बहुत बढ़ गया। पहले इतना कनेक्टिविटी नहीं था।